نحمدہ علی رسول الکریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کا واقعہ اگر بیان کرنا ہم چاہیں تو عقل اس بات کو جواب دے دیتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک مختصر وقفے میں انسان جا کر اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ سکتا ہے۔ اور اس وقت کا یہ بتایا گیا کہ کنڈی بھی جو ان کی تھی وہ ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، جو وضو کا پانی تھا وہ بھی بہہ رہا تھا، ان کے جا کے آئے تھے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے پھر بھی ہم لوگ اتنے 18,000 کلومیٹر کا، اور سوچو اللہ 9ویں آسمان تک، 7ویں آسمان تک کا تو سمجھے جبرائیل علیہ السلام سے 9ویں آسمان تک کا گئے اور ریٹرن آئے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں گئے۔ اگر خواب میں جاتے تو اس پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا نا۔ خواب میں تو ہم بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہم کو جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہم خواب میں ہماری پوری ہو جاتی، جو کچھ بھی سوچ کے اگر ہم سوتے ہیں تو کہتے ہیں خواب میں گئے۔ تو خواب میں تو کلام پاک میں یہ چیز لکھا ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو ملاقات کے لیے بلایا، یہ اللہ نے خود کلام پاک میں فرمایا۔ تو جب اللہ یہ بات کا گواہی دے رہا ہے تو دوسرے لوگ اس چیز کو منع کرنے والے کون ہیں، اعتراض کرنے والے کوئی نہیں۔ تو بولتے ہیں کہ اتنے وقت میں کیسا ہوا، تو اس وقت اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا اور ان کی محبت نے پوری دنیا کو پیدا کی۔ تو جو وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور جو وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ نے جب انہیں اپنے پاس بلایا تو اسی وقت پورے جہان کی جان وہیں پہ رک گئی اور وقت وہیں پہ رک گیا، اور اس کے بعد میں جب وہ پھر آئے تو پھر دنیا شروع ہوئی، تو وقت وہیں پہ رک گیا تھا۔ جو کہتے ہیں کہ اتنا کیسے جا کے پھر ریٹرن آئے، یہ سب ساری چیزیں۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کو دیکھا، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں معاذ اللہ ہمیں تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے تھے۔ انہوں نے کتنا ریکویسٹ کیا تھا کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو کیا کہا تھا اللہ نے کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، پہاڑ پہ بھلے میں تھوڑی سی تجلی اپنی ڈال دوں گا، تم دیکھ لینا۔ تجلی ہلکی سی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ گیا اور وہاں پہ وہ بے ہوش ہو کر گش کھا کر گر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کو نہیں دیکھ پائے تھے، لیکن اللہ نے وہ طاقت ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ وہ ایک مرتبہ نہیں، کیونکہ نماز جو تھی اللہ نے اس وقت ہمیں سب سے بڑا تحفہ کیا ملا تھا، نماز کا ملا تھا، معراج کا۔ تو نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے، لیکن اگر ہم نماز ہی نہیں، جتنے وقت 5 وقت اگر بندہ دل سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی سمجھو معراج ہمیں عطا ہوتی ہے۔ تو اس وقت 50 وقت کی نماز دی گئی تھی حضور کو انعام کے طور پہ اللہ کی طرف سے، لیکن حضور 9 مرتبہ اللہ کے پاس گئے اور 50 وقت کی نماز 5 وقت کی کرتے ہیں، لیکن جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50 وقت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ پاک چاہتا تو ایک ہی بار میں 50 کی 5 کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ بھی یہ چاہتا کہ بار بار میرا محبوب میرے پاس آئے، میں بار بار ان کے دیدار میں سے۔ تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب نکلے حضور براق پہ سوار ہو کر، اس وقت کا واقعہ دیکھیے، جب رات کو ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہے، کی چچا جان، ان کے یہاں چچا جان بہن کے یہاں پہ وہ سو رہے تھے، اس وقت 3 فرشتے، کون؟ حضرت جبرائیل، میکائیل، تینوں جن آئے اور ایک ایک فرشتوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتے آئے تھے۔ کتنے؟ 70۔ انہوں نے چھت کو چاک کیا، اس میں سے آئے، اب سو رہے ہیں تو ان کی ہمت نہیں پڑی کہ مطلب کس طرح سے جگایا جائے۔ ویسے تو حضور ظاہری طور پہ سوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اب وہ جان رہے تو کس طرح سے، تو انہوں نے اپنے سر کو، جو ان کے پیشانی کا تاج تھا، اس کی موتیوں نے اس طرح سے پیشانی کو مشق کیا، حضور کی آنکھیں کھلی، اس کے بعد میں کہا آپ کو اللہ نے بلایا ہے آپ کا دیدار کے لیے۔ اس وقت آب زمزم سے حضور کو
सीने से लेकर नाक तक को चाक किया गया। उसके बाद में दिल निकालकर आबे जमजम से धोया और उसके बाद में फिर वहां पे रखकर सी दिया गया। अब ये सोचो, ओपन हार्ट सर्जरी जो आज साइंस कर रहा है, उस वक्त हुजूर के साथ में बचपन में भी ये वाकया हुआ था इस वक्त। तो ये चीज जो आज साइंस बड़े बड़े दावे करता है, ना खून निकला ना कुछ नहीं, क्योंकि वो तो नूर थे, नूरी बशर थे। हाँ, उस वक्त फरिश्ते ये काम कर अंजाम दे रहे हैं विदाउट, और हुजूर कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा दिल निकाले, इस तरह से दिल निकाल कर उसे धोया फिर और गुस्ल के पानी से, जो आज कहते हैं ना जन्नत, तो जन्नत का जो रंग रोगन है ना, वो हुजूर के तलवों से बहे हुए पानी से। बोले सुभान अल्लाह। जो पानी उनको जब गुस्ल दिया गया, जो पानी जब वहां से बहा, वो फरिश्तों ने उठा लिया और उसी से जन्नत का रंग रोगन और उनके नूर से जो सितारे जो चमक रहे हैं, उन्होंने वो रोशनी उससे ली है। तो आज हमारे हुजूर का ये मर्तबा है कि अल्लाह उनको खुद बुला रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रिक्वेस्ट करने पे अल्लाह नहीं, अल्लाह उनको खुद बुला रहा है। तो अल्लाह ने जब उन्हें बुलाया, उसके बाद बुर्राक की सवारी हुई, तो हुजूर बुर्राक पर सवार नहीं हुए। कहने लगे, अल्लाह जिब्राइल से कहा, मेरे लिए तो बुर्राक की सवारी है, लेकिन मेरे जो बंदे होंगे, मतलब मेरे जो उम्मती होंगे, उनके लिए क्या होगा आखिरत के दिन। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल कह दो कि जो तेरे मतलब नेक बंदे होंगे, नेक उम्मती होंगे, उनके लिए भी मैं बुर्राक की सवारी क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। तो वो जो हस्बी रब्बी मतलब हर एक अपने हमारे लिए, देखो अगर कोई बड़े आदमी का जरा सा बुलावा भी आ जाए तो कितने रोग में हम लोग तो भाव भी नहीं, अरे मेरे को गाड़ी आई है, मेरे को ये आई है। हुजूर उस वक्त जब जा रहे थे, सोचो उस वक्त भी हबली रब्बी उम्मती, मतलब हमारे उम्मतियों का क्या होगा, उनको हमेशा ये चीज़ की फिक्र थी। उन्होंने ये चीज़ की फिक्र नहीं की कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन का करबला में क्या वाक़यात होंगे, उनके लिए मैं कुछ रियायत मांग लूँ, या हज़रत फातिमा जो इतनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने मुश्किलात में गुजारी, उनके साथ क्या हुआ, इतना सब्र किया अपने, और उनके खुद के बेटे जो बचपन में ही विसाल हो गए, उनके लिए भी मांग सकते थे ना। लेकिन हुजूर ने कभी अपने ज़ात के लिए कभी अल्लाह से दुआ नहीं की, और हम उम्मती उनके लिए क्या कर रहे हैं। आज अगर कह दो कि बस ये डंडे और झंडे लेके निकलेंगे, लेकिन हम उनकी कौन सी सुन्नत अदा कर रहे हैं, कोई सुन्नत उनकी अदा हम कर रहे हैं। अब वहां से निकलने के बाद उन्होंने देखा मस्जिद अक्सा, मतलब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से अल्लाह तक, वहाँ का मेराज का ये पूरा वाक़या है। तो जब वहाँ से वो निकले, मस्जिद अक्सा जो भी झगड़ा सब ये सब चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने तमाम जितने भी पैगंबर अंबिया थे सबकी इमामत फरमाई। अगर कहते हैं पैगंबर मर चुके हैं, पैगंबर जिंदा नहीं हैं, तो उन्होंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी कब्र में क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ सकते हैं, तो हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आज ये किस तरह से माज़अल्लाह कहते हैं कि वो मुर्दा है, वो कब्र में नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो तुम जियो उनको मुर्दा कहते, वो खुद मुर्दा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म रहमत से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो इतना ये समझ लो कि जो उन्हें मुर्दा कहते हैं, तो जब सारे पैगंबर आज भी जिंदा है, उनकी इमामत हुजूर फरमा रहे हैं, तो हमारे हुजूर को इस तरह से अल्फाज माज़अल्लाह कहने वाला खुद मुर्दा है। अब वहाँ से उन्होंने इमामत फरमाई, इमामत फरमाने के बाद वहाँ से सफ़र हुआ। सफ़र होने के बाद जब सातवें आसमान पे पहुँचे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि यहाँ अब आगे मैं जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन अगर हुजूर चाहते और साथ में ले जाते तो उनको कुछ, लेकिन हर एक की एक हद होती है, लेकिन अल्लाह ने हमारे हुजूर की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। और वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि 50 वक्त की नमाज मिली है, तो उन्होंने कहा कि आप फिर जाएं, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। तो उन्होंने जब उनको इतने बार भेजा, तो ये बात अल्लाह ने ही मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डाली थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि जैसे मैं अभी आपकी आंखों में देखूं,
तो कुछ न कुछ तो झलक होगी। तो बोले मैं डायरेक्ट तो नहीं अल्लाह को देख सकता हूँ, आप बार बार जाएंगे तो आपकी आंखों में उनकी मैं झलक देखूँ। तो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के भी दिल में था और अल्लाह के भी दिल में था कि बार बार मेरा महबूब आए, बार बार मेरी मुलाकात हो। तो अल्लाह ने उस वक्त नमाज का तोहफा हमें अदा किया, नमाज अदा की। और ये नमाज ही है जो बेशक नमाज छुड़ाती है बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से। तो अगर हम पांचों वक्त नमाज पढ़ेंगे तो हर गलत चीजें हमारे यहाँ उसमें से निकलती चली जाएगी। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हुजूर ने मेराज का वाकया हुजूर को ही क्यों बताया गया, हुजूर को ही जन्नत दोज़ख हर चीजें क्यों बताई गई। तो देखो अभी आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, भले तुम लोग मोबाइल पे कुछ भी देख लो, लेकिन जो सामने से इंसान देखता है करता है उसको बयान करने में उसका लहजा अलग होता है। तो अल्लाह ने ये चाहा कि इनके उम्मती हैं उनको आंखों देखा हाल पता रहे ताकि ये गुनाहों से बचे। क्योंकि देखो जितने भी पैगंबर आए मोस्ट ऑफ जन ने अपने उम्मत के लिए बद्दुआ कर दी। अब ये बताओ जिस वक्त मस्जिद अक्सा थे वहां पे यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का जहाँ पे मज़ार था, मज़ार के पास से जो पानी बहता था तो वहाँ पे सब सब्ज़त होता, मतलब जरदा मतलब अच्छा होता था, खेती अच्छी होती थी। तो वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि जहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार के पास से पानी बहता है वहाँ पे खेती अच्छी होती, तो उन्होंने उनका ताबूत ही निकाल के अपनी जगह ले जाकर वो कर दिया। तो आपस में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे ताबूत को रखा जाए, उसके आजू बाजू में पानी का तालाब बना दिया जाए और उसमें से फिर हर जगह पानी जाए। तो ये सोचो जहाँ पैगंबरों की मज़ारात होते हैं उसके अगल बगल में अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम पैगंबरों का वली अल्लाह का जिक्र करेंगे वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती है, क्योंकि उनका जिक्र करने से हमारा ईमान ताज़ा होता है। आज हम मेराज का वाकया बयान करने से आज साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, जो बड़े बड़े वाले अल्लाह तक पहुंच सकता है, ब्लड बना सकता है, आंखें बना सकता है, अपने पार्ट जो नकली बना रहे लेकिन वो चीज पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता ना। खून को आज तक पैदा कर सका, नहीं कर सकता है ना। और जिस तरह से कहते हैं कि इतने जगह हुजूर एक वक्त में कैसे पहुंच सकते हैं। हम लोग मोबाइल से कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। तो ये टेक्नोलॉजी अल्लाह ने हमें बख्शी तो कितनी पीढ़ियों के बाद आई है। तो अल्लाह ने जिसे अपना महबूब करार दिया उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो तो हमारे मतलब गुमान ही नहीं कर सकते वो चीजों का। अब एक वक्त में कितनी जगह इंतकाल होता है, कहते हुजूर सामने आएंगे। अब अक्ल इस बात को जिस बात को अक्ल जवाब दे दे वही मौजज़ा होता है, और हर एक के सामने हुजूर आएंगे और जो ईमान वाला होगा वो उनको पहचानेगा, जो ईमान वाला होगा नहीं पहचानेगा। तो अल्लाह ने जब उनको भेजा तो देखा कि जहाँ पे अभी देखो क्या क्या चीजों के लिए बताया गया, जैसे सूदखोर, मतलब देखा खून की नदी में ऐसे तैर रहे हैं। तो बोले ये लोग कौन है जो खून की नदी में तैरे, तो बोले ये ब्याज लेने वाले लोग, ब्याज खोर जो ब्याज लेते हैं। एक जगह देखे कि लोहे के नाखून है और अपने ही पूरे शरीर को नोच रहा है, खून निकाल रहा है। तो बोले ये कौन है, तो बोले ये वो हैं कि जो लोग अपने ही भाई बहन की बुराई चुगली किया करते थे। तो ये लोग मतलब अपना ही गोश्त खा रहे, खुद का ही गोश्त नोच रहे। मतलब देखो चुगली एक ऐसी होती है जैसे मेरे दिल में इनके लिए बुराई है, मैं सामने नहीं बोल रही बट मैंने इनको बोली, इन्होंने जाके इनको बता दिया तो इनके दिल में मेरे लिए बुराई पैदा हुई कि मेरे लिए बात कर रही। तो अल्लाह इससे हमें बहुत, क्योंकि इससे बहुत दिलों में बुराइयां पैदा होती। एक जगह देखी कि औरतों को जो है बालों के बल उल्टा लटकाया गया और सीने जो है ना सीनों के बल लटकाए हुए हैं, जवान जो है नीचे लटकी हुई है। तो बोले ये कौन है, तो ये औरतें जो बेपर्दा घूमती थी। अभी मैं तुमको बताऊं कि हमसे अल्लाह नाराज किस तरह होता है। अभी मैं खुद का मैं कन्फेशन करती हूँ कि जैसे अभी मेरे बहन के यहाँ शादी थी, मेरे बहन के यहाँ शादी थी, सब लोग ने इसरार किया कि चलो सबके शादी में तुमने डांस किया, डीजे वगैरह लगा था, अब मैंने भी डांस कर दिया। माजल्ला मेरे को उस चीज़ का
मतलब मैंने खुश किसको करना चाहा, अपनी बहन को तो खुश नहीं कर पाई, लेकिन अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। तो हम अगर दुनिया वालों को खुश करने जाते हैं ना, तो अल्लाह हमसे नाराज, और अल्लाह को हम राजी रखेंगे तो पूरी दुनिया खुद भी हमारे पीछे आएगी। तो हम क्या करते हैं, देखो हजरत गौसे आजम को एक बार वो वाज कर रहे थे, शैतान सांप की शक्ल में आया, सामने सांप की शक्ल में आया, उनके सामने बिल्कुल इस तरह से पूरा फन फैलाए बैठ गया, यहाँ तक उनके कमीज में घुसा, हाथ से निकला। वो अपना उतना बड़ा अजदहा उनके पूरे शरीर में घूम रहा था, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, और उन्होंने अपना वाज जारी रखा। उसके बाद में वो सांप निकल कर चला गया, मुंह के पास पता नहीं क्या बोल के। तो जब वाज खत्म हुआ तो लोग तो बिल्कुल दहशत में थे, कहने लगे इतना बड़ा अजदहा तो सामने आ रहा है, पूरा आपके मुंह पे इस तरह से कर रहा है, और आप बोले वो मुझे ये कह रहा था कि इतने सारे वली अल्लाह मैंने देखे, उनको इसी तरह मैंने डराने की कोशिश की कि अल्लाह की राह से भटका दूं, लेकिन वो लोग डर के मारे वहां से वो चीज से हट गए, लेकिन आपको मैंने साबित पाया। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो मैं तुझसे क्यों डरूं? अगर मेरी मौत इस वक्त अल्लाह ने लिखी होती तो वैसे भी हो जाती, तो मैं तुझसे क्यों डरूं?